રામ નામથી ડર દૂર જતો રહેશે, ગાંધીજીને રંભા નામની સ્ત્રીએ શીખવ્યું છે. મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોરબંદરમાં કીર્તિ મંદિરમાં પ્રાર્થના સભામાં ઉપસ્થિત રહેશે. અનેક પ્રવાસીઓ દરરોજ કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લે છે, ત્યારે પોરબંદર એટલે કૃષ્ણ સખા સુદામાની કર્મભૂમિ તથા વિશ્વ વંદનીય વિભૂતિ ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી એટલે કે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનું જન્મસ્થળ, સત્ય અને અહિંસાના હથિયારથી વિશ્વને ઝુકાવનાર સાબરમતીના સંતની આ પોરબંદરના સંતાન છે. તેમનો જન્મ જે સ્થળ પર થયો હતો તે આજે કીર્તિ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે, જેનું સંચાલન વહીવટી તંત્ર અને કીર્તિ મંદિર સંચાલન સમિતિ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. આ સ્થળ 2 વિભાગમાં વિભાજિત છે. એક મહાત્મા ગાંધીજી જ્યાં જન્મ્યા હતા તે સ્થળ, અને બીજી પૂજ્ય બાપુને આદરાંજલિ આપવા માટે બનાવાયેલ સ્થળ એટલે કીર્તિ મંદિર. 2 ઓક્ટોબર 1869માં પોરબંદરના આ સ્થળે ગાંધીજીનો જન્મ થયો હતો. જૂનું મકાન મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રપિતામહ હરજીવન ગાંધીએ ઈસવીસન 1777માં પોરબંદરના એક બ્રાહ્મણ મહિલા પાસેથી ખરીદ્યું હતું. ગાંધીજીના દાદા ઉત્તમચંદ ગાંધી કે જેઓ ઓતા ગાંધી તરીકે ઓળખાય છે, તેઓએ મકાનને વિસ્તૃત કરી 3 માળનું બનાવ્યું હતું. ઓતા ગાંધી પોરબંદર રાજના દિવાન હતા. 7 વર્ષ સુધી પોરબંદરમાં ગાંધીજી રહ્યા બાદ રાજકોટમાં અભ્યાસ અર્થે ગયા હતા અને આજના જૂના મકાનના પટાંગણમાં 1882માં 13 વર્ષની ઉંમરે મોહનદાસ ગાંધીજીના લગ્ન પોરબંદરના નગર શેઠ ગોકુલદાસ મકનજીની દીકરી કસ્તુરબા સાથે થયા હતા. ઓસરીમાં રૂમ નીચે એક વિશાળ ટાંકી આવેલી છે, જેમાં વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો હતો. ઉપરાંત દરવાજામાં કોતરણી અને કાષ્ઠકલા પણ જોઈ શકાય છે. બાપુનો જન્મ જ્યાં થયો હતો તે સ્થળે સ્વસ્તિક દોરવામાં આવ્યો છે અને ઉપરાંત રેટીઓ કાઢતા હોય તેવું તેલી ચિત્ર પણ રાખવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સામેની બાજુ પિતા કરમચંદ અને માતા પુતળીબાઈનું 3D ચિત્ર પણ મૂકવામાં આવ્યું છે. માતા પુતળીબાઈ ચુસ્ત વૈષ્ણવ ધર્મ પાળતા હોવાથી તેઓ તેને રસોડામાં રસોઈ અલગ બનાવતા હતા, જ્યારે ઉપર એક વધુ રસોડું હતું. ઓરડામાં સુશોભન અને ચિત્રો દોરવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 1944-45માં આગા ખાન મહેલમાં કારાવાસમાંથી બાપુને મુક્ત કરવામાં આવ્યા, ત્યારે પોરબંદરના રાજરત્ન શેઠ નાનજી કાલિદાસ મહેતાએ પંચગિનીની ખાતે રોકાણ કરવાની વિનંતી કરી હતી. આ દરમિયાન પોરબંદરના મહારાજા નટવરસિંહે પ્રજાની લાગણી વ્યક્ત કરીને બાપુના જન્મસ્થળ પાસે એક સુંદર સ્મારક બનાવવાની વાત રજૂ કરી હતી. તે સમયે બાપુએ સહમતિ આપી હતી અને 1947માં દરબાર સાહેબ ગોપાલદાસ દેસાઈના હસ્તે શિલાન્યાસ વિધિ થઈ હતી. 5 લાખના ખર્ચે 2 વર્ષે કીર્તિ મંદિરનું નિર્માણ કરાયું અને 1948માં ગાંધીજીનું મૃત્યુ થતાં તેમના જીવનના 79 વર્ષ પ્રમાણે જીવનભર ગરીબી કુરિવાજ રૂપી અંધકારને ઉલેચવા માટે પરિશ્રમ કરતા રહ્યા. તેના પ્રતીક સ્વરૂપે શિખર પર માટીના કોડિયાના આકારે 79 પ્રજ્વલિત દીપક ગોઠવવામાં આવ્યા હતા અને સર્વધર્મ સંભાવ એવા મુખ્ય 6 ધર્મોના પ્રતીકો પણ રાખવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત બાપુએ જણાવ્યું હતું તેમ મારું જીવન ખુલ્લી કિતાબ છે, તેમ ખુલ્લી કિતાબ જેવા કસ્તુરબા અને ગાંધીજીના ફોટો પણ રાખવામાં આવ્યા છે, જે પોરબંદરના ખ્યાતનામ ચિત્રકાર નારાયણ ખેર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે. અને હું ભગવાન બનવા માગતો નથી તેમ ગાંધીજીએ શરત રાખી હતી. આથી સ્મારકમાં ધૂપ, દીવો, અગરબત્તી કે આરતી ન થવું જોઈએ. આમ ચિત્રો નીચે સત્ય અને અહિંસા લખવામાં આવ્યું છે. આમ 27/5/1950ના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના હસ્તે આ સ્મારકને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું હતું. તો અનેક પ્રવાસીઓ દરરોજ कीर्ति मंदिर की मुलाकात ले छे। हनुमानगढ़ जिले से, राजस्थान से गांधी दर्शन स्मारक और गांधी जी के जो है जन्म स्थल को देखने के लिए हम लगभग 70 सदस्यों का जो है दल पधारा है। यहाँ पहुंचने पर हमें बहुत ही आत्मिक शांति मिली है। आज जिस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं उसकी नींव गांधी जी ने रखी थी। उनके सपनों का भारत बने, यही हमारा जो है प्रयास हो। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी। जिसको विश्व ने सहस्त्राब्दी का सबसे उत्तम मानवी का बिरुद दिया है,
वो महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर है। इस बात का पोरबंदर को और गुजरात को गौरव है। महात्मा गांधी के जन्म के बाद उसके विकास में, उसके सद्गुण के विकास में यहाँ के पर्यावरण का, उसके माता पिता का और कई लोगों का रोल भी है। महात्मा गांधी के पिता बहुत हिम्मतवान थे। जब भी यहाँ के राजवंश के साथ कोई तकलीफ होती थी तब सत्य निष्ठा से अपनी बात को पकड़ रखना वो करमचंद गांधी की एक खासियत थी। गांधी जी में जो अभय और सत्य निष्ठा है वो अपने पिता की ओर से हेरिडिटरी आ गया हो ऐसा लगता है। उसकी माँ बहुत सत्यपरायण थी, बहुत धर्मनिष्ठ थी और यहाँ का प्रणामी मंदिर है, वहां छोटे बालक को लेकर जाया करती थी तो लगता है कि भगवत परायणता, ईश्वर की श्रद्धा और राम नाम में जो विश्वास है वो उसकी माँ की ओर से आया है। एक रंभा नाम की बहन थी जो केयर टेकर बोलते हैं, गांधी जी को संभालने के लिए रखी गई थी। जब भी गांधी जी को अंधेरे का बहुत डर लगता था तब रंभा कहती थी अक्सर, राम नाम के उच्चार से, उसके पारायण से किसी भी प्रकार का डर निकल सकता है। और गांधी जी ने यही किया। जब भी अंधेरे में जाते, राम नाम का जप करते करते जाते, तब से प्रभु में विश्वास, प्रभु में अड़ग श्रद्धा महात्मा गांधी में जो डेवलप हुई बचपन से, लगता है इसमें इस घटना का भी महत्वपूर्ण रोल है। महात्मा गांधी यहाँ अध्वर्य पाठशाला में उसकी शिक्षा शुरू हुई थी, लेकिन 7 साल की उम्र में फिर वो राजकोट चले गए थे अपने पिता के साथ। आज भी जब महात्मा गांधी के निर्वाण के बाद श्री नानजी कालिदास मेहता ने बनवाए गए कीर्ति मंदिर में जाते हैं, कीर्ति मंदिर में भी आप देखो कि सर्व धर्म संभाव का ध्यान रखते हुए ही उसका बांधकाम किया गया है। जब भी जाते हैं 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को, दिवाली पर, तब महात्मा गांधी के वाइब्रेशंस की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती है। जब गांधी जी के शैशव की बात करें तो गांधी जी का जो बचपन था वो 7 साल तक तो यहाँ रहे, फिर पढ़ाई के लिए राजकोट गए और 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। और फिर हम सब जानते हैं कि गांधी जी वकालत करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पहले ब्रिटेन गए, फिर वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, फिर भारत आए। यह तो पूरा इतिहास सबको मालूम है। लेकिन एक बहुत गांधी जी के जीवन में जो प्रभाव रहा है वो उनकी माता पुतलीबाई का रहा है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गए तो काफी उस समय रूढ़िचुस्त समाज ने उसका विरोध किया और ये सब बात है। लेकिन उनकी माता ने उनके सामने कुछ अपनी शर्तें रखी थी और उस कारण से गांधी जी ने कभी वहां मांसाहार नहीं किया, कभी मद्यपान, शराब का सेवन नहीं किया और ऐसे कुछ जो बुराई है और भी उनसे वो बचते रहे। इस 2 अक्टूबर को जब हम गांधी जन्म जयंती की हम उत्सव मना रहे हैं, उसमें इसकी एक खास विशेषता ये है क्योंकि ये 153वीं वर्षगांठ है। तो क्लीन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत यहाँ के 153 जितने स्कूल के बच्चे सफाई की अभियान में अपना हिस्सा लेंगे और हम एक वेबसाइट का भी प्रावधान कर रहे हैं जो शायद 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री उसका उद्घाटन करेंगे। और उस वेबसाइट के माध्यम से जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ आ नहीं सकते हैं वो भी गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में तीनों भाषा में इस वेबसाइट से गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, कीर्ति मंदिर के बारे में, जन्मस्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दूसरे छोटे छोटे 2 उसमें हम वो करने जा रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी हम बना रहे हैं कि इस सेल्फी पॉइंट में व्यक्ति आके खड़ा रहेगा और जैसे गांधी जी के स्वरूप में अपने आप को
उसको फोटोग्राफी कर सकता है। एक स्वदेशी पॉइंट भी बनाने की कोशिश करें जहाँ पे हम चरखा रखेंगे और कोई आदमी वहाँ बैठ के यदि चरखा काटना जानता है तो काट सकता है, या सीखना चाहता है तो उसको सीखने को भी मिलेगा। और एक पोरबंदर की जो ऐतिहासिक विरासत है, पृष्ठभूमि है, उसके संदर्भ में हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहन से मोहन। तो उस मोहन से मोहन का किताब का भी लोकार्पण होगा और वो हिंदी में है, ताकि लोग पोरबंदर की इतिहास को महात्मा से महात्मा का मोहन से मोहन का संबंध ये है कि ये सुदामापुरी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा जी निवास करते थे। यहीं पे पास में माधवपुर में माधवराय जी का मंदिर है और इसकी विशेषता यह है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी से यहाँ हुआ। पास में जाम्बवान की बहुत ही प्राचीन गुफा है, वो भी ASI का मॉन्यूमेंट है, और वो प्राचीन गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान जी को, जो उनके राम काल के राम युग के त्रेता युग के साथी थे, सहयोगी थे, उनसे मुलाकात हुई और जाम्बवान की पुत्री जामवती जी से उनका विवाह हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण की 2 पटरानियां ऐसी पोरबंदर की भूमि से उनको मिली है। यहाँ के जो जेठवा वंश के महाराजा हैं और शासक हैं, बहुत ही प्रजापालक और बहुत ही चरित्रवान शासक हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता है कि उनका जो संबंध है वो हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज से है। तो काफ़ी चीज़ें इतिहास की इसमें हैं और युगों युगों से पोरबंदर संतों की, सेवकों की, शूरवीरों की, सतियों की और बहुत ही बड़े बड़े कवि, लेखक और चित्रकार भी यहाँ हुए। तो ये जो भूमि है वो मुझे लगता है कि बड़ी ही सांस्कृतिक विरासत को संजोकर अपने साथ है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।